Hello everyone. In our previous lecture, we have discussed continuity and discontinuity of functions at a point with some examples. In today's lecture, we define continuous functions and then we will discuss some examples of standard continuous functions. Now let f be a function defined on a set E, then f is said to be continuous on E, or simply we can say continuous function. If f is continuous at C for every C belongs to E. That means we say that f is continuous on E where E is domain of this function f. Then we say that f is continuous on E if f is continuous at every point of its domain. ठीक है, जो कॉन्टीन्यूटी है बेटा वो वैसे लोकल प्रॉपर्टी कहते हैं, हम उसे हम चेक हमेशा पॉइंट वाइज ही करेंगे, लेकिन अगर वो डोमेन के हर एक पॉइंट पे कॉन्टीन्यूस हो गई देन वी कैन सिंपली से एफ इज़ कॉन्टीन्यूस फंक्शन. It means f is continuous on its whole domain, or you can say f is continuous at every point of its domain, or we can say limit x approaches to c, f of x is equal to f of c for every c belongs to E. ठीक है, हमने किसी सिंगल पॉइंट पे कॉन्टीन्यूटी की यही डेफिनेशन दी थी. f is said to be continuous at c if we have limit x approaches to c, f of x is equal to f of c. अब अगर ये कंडीशन डोमेन के हर एक पॉइंट पे ट्रू हो जाए then we say that f is continuous function or f is continuous on E. Now we will discuss some examples of standard continuous function. So सबसे जो standard example जो सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है that is example of polynomial functions. As you know that any expression of the form a naught plus a1x plus a2x square plus so on a n x raised to power n, this type of expression is known as a polynomial. So अगर हमारा function जो है that is defined like this, so f जो है that is a polynomial function where all ai's are real numbers and an is not equal to 0, so that fx is polynomial function of degree n. Then we can prove f is continuous. सबसे पहले तो हम फंक्शन की डोमेन देखेंगे कि डोमेन क्या है, फिर डोमेन के हर एक पॉइंट पे हमने इसे कॉन्टीन्यूस प्रूव करना है. नाउ एज यू ऑल नो दैट, और आप देख भी सकते हो कि ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइंड है. आप x की वैल्यू जो मर्ज़ी पुट कर दो एफ एक्स की आपको वैल्यू मिल जाएगी. सो दिस फंक्शन इज़ डिफाइंड फॉर एवरी real value of x. So domain of f in this case is whole real numbers. So domain of f के लिए हम ये notation use करते हैं and it is equal to r in case of a polynomial function. So now we have to prove f is continuous at its whole domain. That is, we have to prove f is continuous at every real number. So let C be any real number, then if I consider limit x approaches to C f of x, then you can see it is equal to limit x approaches to C, fx की हम वैल्यू पुट कर देंगे a naught plus a1x plus a2x square plus so on a n x raised to power n, and
it is equal to a naught plus a1 limit x approaches to c x plus a2 limit x approaches to c x square and so on, an limit x approaches to c x raised to power n. ठीक है, ये जो कोफिशिएंट्स हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ लिमिट, सो वी कैन राइट लाइक दिस. ठीक है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज़ हो जाएगा. आपने पढ़ा होगा लिमिट x approaches to c f of x plus g of x is always equal to limit x approaches to c f of x plus limit x approaches to c g of x. ठीक है, आई होप आपने लिमिट के ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पढ़े हुए होंगे. तो यहाँ पे हम ये वाला रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं. सो यूजिंग दिस रिजल्ट we can write this limit like this, and now using limit it becomes a naught plus a1 c plus a2 c square plus so on a n c raised to power n, which is clearly equal to f of c. अब ये देखो f of x में अगर हम x को c पुट करें तो यही वैल्यू आएगी ना. जहाँ जहाँ x है उसकी जगह आप c पुट करोगे. इट मीन्स ये क्या है, वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट x इज इक्वल टू c. सो नाउ यू कैन सी ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई. लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c, और c क्या था यहाँ पे, एनी रियल नंबर. इट मीन्स f इज कॉन्टीन्यूस एट एवरी रियल नंबर. सो पॉलिनोमियल फंक्शन जो है, अब आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है तो आप उसे बिना चेक किए कह सकते हैं दिस इज़ कॉन्टीन्यूस फंक्शन. ठीक है, वो अपनी डोमेन के हर एक पॉइंट पे कॉन्टीन्यूस होता है. हाँ जी, दूसरी एग्जांपल जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है कांस्टेंट फंक्शन. कांस्टेंट फंक्शन जो है वो कैसे हम डिफाइन करते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इज़ डिफाइंड एज के फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर. यानी एफ जो है हमारा फंक्शन दैट इज़ डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर. सो डोमेन ऑफ एफ जो है इन दिस केस दैट इज़ अगेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. और यहाँ पे हम डिफाइन कैसे करते हैं, कांस्टेंट फंक्शन है. सो हर एक पॉइंट की सेम इमेज होएगी. एक्स की जो मर्जी वैल्यू लो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू के ही आनी है, वेयर के इज़ सम कांस्टेंट, वेयर के इज़ सम कांस्टेंट नंबर. ठीक है, अब ये जो कांस्टेंट फंक्शन है एक्चुअली इसे हम ट्रीट कर सकते हैं एज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि हमने पिछली एग्जांपल में क्या देखा, पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा क्या था, ए नॉट a1 x प्लस सो ऑन a n x रेज टू पावर n. अब अगर मैं n को 0 ले लूँ एंड a नॉट को k ले लूँ, तब देखो यही वाला फंक्शन बन जाएगा. n को हमने 0 पुट किया, इट मीन्स हमारे पास क्या था, x की पावर n तक जानी थी, n को 0 किया, x की पावर 0 1 हो जाएगी. इट मीन्स सिर्फ एक ही टर्म बचेगी a नॉट, और वो हमारी कांस्टेंट टर्म है, उसे हम k ले लेते हैं. इट मीन्स जो कांस्टेंट फंक्शन है दैट इज़ एक्चुअली कांस्टेंट पॉलिनोमियल. सो कांस्टेंट फंक्शन रिप्रेजेंट्स a constant polynomial, and so it is continuous for at every c belongs to r. ठीक है, कोई भी रियल नंबर लो उस पर कॉन्टीन्यूस होगा, क्योंकि हमने पिछली एग्जांपल में प्रूव किया है polynomial function is always continuous, and it is a particular case of polynomial function which is called constant polynomial. So constant function is always continuous function. तो थर्ड एग्जांपल बेटा जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ मॉडुलस फंक्शन. ठीक है, सो लेट f of x is defined as mod x for every x belongs to r. Then again you can see this function is defined for every real number.
So domain of function is set of whole real numbers, that is R. ये एग्जांपल हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस की थी, लेकिन उसमें हमने इसकी कॉन्टीन्यूटी चेक की थी ओनली एट सिंगल पॉइंट, दैट इज़ 0 पे हमने इसकी कॉन्टीन्यूटी डिस्कस की थी, लेकिन आज हम इसकी कॉन्टीन्यूटी चेक करेंगे एट एवरी रियल नंबर. ठीक है, सो टुडे वी प्रूव दैट दिस फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस एट एवरी रियल नंबर. नाउ लेट सी बी एनी रियल नंबर. हाँ जी, पिछली वीडियो में मैंने आपको इसका ग्राफ भी ड्रॉ करके दिखाया था. जो मॉड फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू मॉड एक्स, इसकी एक्चुअली वैल्यू क्या होती है? -x इफ़ एक्स इज़ लेस देन 0 एंड इट इज़ इक्वल टू x इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 0. ठीक है, तो इसका जो हमारा ग्राफ बनता था वो कुछ इस तरीके से था. तो इसकी वैल्यू जैसे आप देख सकते हो, ग्राफ जो है इधर स्मूथली चल रहा है, इधर स्मूथली, मतलब इसकी जो डायरेक्शन जो है चेंज होती है वो है 0 पे. इसलिए जो c है इसके हम 3 केस डिस्कस करेंगे, क्योंकि c लेस देन 0 के लिए फंक्शन का ग्राफ कुछ और है, c ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ कुछ और है. सो वी डिस्कस 3 केसेस. केस 1, इफ़ c इज़ लेस देन 0. Now you can see if c is less than 0, in this case f of x is -x. So in this case, limit x approaches to c f of x, that is equal to limit x approaches to c -x. So it is equal to -c. Also f of c, which is equal to mod c, again because c is less than 0 in this case, so mod c is also is equal to -c. Therefore limit x approaches to c f of x is equal to f of c. ठीक है, so if c is less than 0 in this case, condition of continuity is satisfied. Now case 2, if c is greater than 0, then limit x approaches to c f of x, that is equal to limit x approaches to c. हाँ जी, जब x c को अप्रोच कर रहा है और c ग्रेटर देन 0 है, c ग्रेटर देन 0 इट मीन्स x भी हमारा ग्रेटर देन 0 होगा. सो इन दिस केस मॉड x इज इक्वल टू प्लस x, सो वी गेट इट इज इक्वल टू c. एंड ऑल्सो f of c, which is equal to mod c. Now because c is positive, so mod c is also is equal to c. Therefore in this case again we get limit x approaches to c f of x is equal to f of c. Now case 3rd, if c is equal to 0. अब ये जो केस है c इक्वल टू 0, इसमें आप देखो, अब अगर x c को अप्रोच करेगा, c हमारा यहाँ है, अगर x c को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तब x क्या होगा? नेगेटिव. और अगर x अप्रोच कर रहा है c को फ्रॉम राइट हैंड साइड, तब x होगा हमारा पॉजिटिव. तो उस हिसाब से हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों कंसिडर करनी पड़ेंगी यहाँ पे, क्योंकि जब हमारा c पॉजिटिव था, सपोज़ यहाँ पे c है, तब तो ये है कि x चाहे लेफ़्ट से अप्रोच करे चाहे राइट से अप्रोच करे, x पॉजिटिव ही रहेगा. सिमिलरली अगर c नेगेटिव है, यानी सपोज़ यहाँ कहीं है, तब भी चाहे x उसे राइट से अप्रोच करे चाहे लेफ़्ट से अप्रोच करे, इन बोथ केसेस x विल बी नेगेटिव. बट अब जब c हमारा 0 है, तब हमारे पास सिनेरियो डिफरेंट है. अगर x c को लेफ़्ट से अप्रोच कर रहा है तो x नेगेटिव होगा, जब x राइट से अप्रोच करेगा तो x हमारा पॉजिटिव होगा. सो इस केस में हमें दोनों लिमिट्स कंसिडर करनी पड़ेंगी. सो इफ़ वी कंसिडर लिमिट x अप्रोचेस टू c फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, इन दिस केस x is negative, so f of x will be minus x, and so it is equal to minus c. बट c हमारा क्या है अब? 0, सो ये हमारी लिमिट 0 हो जाएगी. एंड नाउ इफ आई कंसिडर
right hand limit of f at c, that is equal to limit x approaches to c from right hand side. And now when x approaches to c from right hand side, in that case x is positive, so f of x is equal to x, and so its value is c. But again, because c is 0, so value of limit is 0. It means left hand limit is equal to right hand limit. Therefore, limit x approaches to c, f of x is equal to the common value of these two limits, which is 0. And also you can see f of 0 जब आप 0 put करोगे, that is again 0. So in this case we get limit x approaches to c. ठीक है, c हमारा एक्चुअली 0 है, सो इसे मैं f of c भी लिख सकती हूँ. This implies limit x approaches to c, f of x is equal to f of c. So you can see in all cases, all the three cases, we get limit x approaches to c, f of x is equal to f of c. Therefore, f is continuous at c. c क्या था हमारा? Any real number. It means f is continuous at every real number. So mod function जो हमारा है, that is continuous at every real number. That is modulus function is continuous at every real number. I hope you all have understood today's lecture. In our next lecture, we will discuss some more examples related to this topic. So, thanks for watching.